February, March 2019, variance 12. Question number 1. The Boltzmann distribution is shown for a sample of a gas at an initial temperature T1. And obviously this temperature is going to be the lower temperature because lower temperature के ऊपर जो curve की shape है वो कुछ इस तरह से दी हुई है उन्होंने, okay? All right, the sample of the gas was heated to temperature T2. So when we heat the sample, obviously this temperature is going to be higher than this one, all right? What is the correct distribution for the higher temperature T2? And that's the most important thing. So मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जब high temperature करते हैं तो जो most probable energy होती है वो decrease होती है, यानी ये most probable energy decrease होगी. Curve maximum shifts to the right hand side like this, and there will be no change in the activation energy because activation energy only changes with a catalyst. All right, or so option A is incorrect, obviously, because it is same actually. This thing and this thing is same. So at high temperature, the shape of the curve changes, but this option shows that the shape of the curve remains same, which means it's not going to be the correct option. Now, in this case, at high temperature, the curve, the most probable energy decreases like this, and the curve shifts maximum towards right hand side. So I think B is going to be the right answer. Let's talk about C and D. Guys, D is incorrect because at high temperature, curve हमेशा maximum right hand side पे shift होता है, यहाँ पर left hand side पे shift हुआ है. That indicates कि ये lowest temperature हो गया. Lowest temperature यानी T1 जो temperature था उससे भी कम है. तो अगर let's suppose ये 30 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, तो ये अब 30 पे भी नहीं हो रहा है, ये इनफैक्ट 30 से कम पे हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस. Let's suppose, okay. C is also incorrect because मैंने आपसे कहा कि ये जो शेप है ये एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए. दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ये ज्यादा हो गई है, राइट? द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी won't be increases at a high temperature. It needs to be decreases, all right? So C is going to be incorrect option, and obviously B is going to be the correct answer. Question number 2, goodness, calculation. 3.7 grams sample of copper to carbonate. तो अगर 3.7 ग्राम कॉपर टू कार्बोनेट है हमारे पास, तो इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पर मोल्स ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो माय फर्स्ट स्टेप इज मोल्स ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट. 3.7 को डिवाइड कर दीजिए कॉपर कार्बोनेट के एमआर से, which is 123.4 आ रहे हैं, 0.0299. Okay. Now the next is added to 25 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. We can find the moles of HCl in the second step. Because we know the concentration, we know the volume, we can find the moles. So 25 into 2.0 divided by 1000 is going to be how much? 0.05 mole per dm. 0.05 moles. Okay. All right. So by using this, I found the moles of copper carbonate. By using this, I found the moles of HCl. And now in the third step, we need to make the equation between copper carbonate and HCl. So remember, copper carbonate, when reacted with HCl, it will turn to salt, that is copper chloride. Water and carbon dioxide. Okay. All right. Oops.
सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये आपका 1 मोल है, ये आपका 2 मोल है। अगर आपने 0.0299 कैलकुलेट किया है तो बताइए ये कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से मोल्स ऑफ HCl एक्चुअली कितने मिल रहे हैं आपको, 0.0299 times 2 is going to be 0.0598 moles, राइट। तो आप नोट करें ये जो मोल्स आपको मिल रहे हैं ये ज्यादा हैं जबकि ये मोल्स कम हैं, इसका मतलब HCl is going to be the limiting reactant. That's how we need to decide कि इन दोनों में से limiting reactant कौन सा होगा। तो this is going to be the limiting reactant और इसी की वजह से अब हम कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। ओके, लिमिटिंग रिएक्टेंट सही है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हम जानते हैं कि HCl और कार्बन डाइऑक्साइड हैज 1:2:1 का रेशो। तो HCl and carbon dioxide has 2:1 का रेशो। अगर आपने 0.05 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली is going to be 0.05 divided by 2 is going to be 0.025. Now we need to find the volume because the examiner हमसे volume of gas produce का पूछ रहे हैं at room condition. So volume of carbon dioxide अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं 0.025 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 dm³ से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा into 24 0.6 dm³. 0.6 dm³ is A and therefore A is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Next question, question number 3. Which statement about the 3p orbital is correct? Can hold maximum of 6 electrons. Examiner is talking about a 3p orbital. An orbital can accommodate only 2 electrons, not more than that. Okay. Orbital can accommodate only 2 electrons. So orbitals can accommodate only 2 electrons. और यहाँ पर एग्जामिनर कह रहे हैं 6 electrons. This means option A is incorrect because 6 electrons जो हैं वो सब शेल के अंदर जाएंगे, p सब शेल में, ऑर्बिटल में 2 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, it has the highest energy orbital with principal quantum number 3. Again it is incorrect because if we talk about third shell, the third shell has 3s orbital, 3p orbital and 3d orbital और आप जानते हैं कि 3d की एनर्जी हाईएस्ट होती है। That's not the right option. Let's talk about C. It is at a higher energy level than a 3s orbital but has the same shape. Again it is incorrect because 3p orbital की एनर्जी नो डाउट 3s से ज्यादा होती है लेकिन जो शेप है वो सेम नहीं होती बिकॉज 3s की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है और 3p की जो शेप है वो डम्बेल होती है, which is also called elliptical shape. Okay, that indicates that D is going to be the correct option. Let's talk about D. कि D क्या कह रहा है हमें? D कह रहा है It is occupied by 1 electron in an isolated phosphorus atom. ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं phosphorus की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2
और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1, तो ये आई मीन 3 आ जाएंगे टोटल। तो आप नोट करें इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। बिल्कुल सही बात है कि 3p में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। Question number 8. The 8 species that follows all have covalent bonds. In which pair do the species have different shapes from each other? So we have done hybridization, geometry, and angles in such a detail that you will find all these examples in the lecture. All right. So you guys should have a better idea. भाई मुझे सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. Both have linear geometries. Both of them. Which is why both shapes are same. जबकि एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं कि shapes have different shapes होनी चाहिए. So that's not gonna possible. All right. Similarly, both have tetrahedral geometry. Obviously, it is also incorrect. D is also incorrect because both of them band-shaped geometry, or band shape, or non-linear shape, or crooked shape. The right answer is going to be C. Why C? Because ammonia exhibit trigonal pyramidal geometry, whereas BF3 has trigonal planar. Okay. Histidine is an amino acid. Okay. What are the approximate bond angles 1, 2, and 3? That's easy. That's very, very easy. Carbon के valence shell में 4 electrons होते हैं because it is found in group 14 of the periodic table. Let's count those 4 electrons. तो अगर मुझे कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने होंगे तो टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेते हैं. तो 3 सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, 0 लोन पेयर है हमारे पास, टोटल हमारे पास 3 हो जाएगा. 3 लाइंस ड्रॉ करो. सबसे पहली वाली लाइन s ऑर्बिटल की होती है, बाकी दोनों लाइंस p ऑर्बिटल की होती है. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, and if the hybridization is sp2 with this situation, 3 single bond and a 0 lone pair, then the geometry is planar and angle is 120. So first is 120. So this is 120. Let's talk about second. नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Let's count those 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Now this situation has 3 single bond around nitrogen and 1 lone pair. So total is going to be 4. 4 lines draw करो. सबसे पहली वाली लाइन s ऑर्बिटल की है, बाकी तीनों लाइन p ऑर्बिटल की हैं. तो hybridization is going to be sp3, and the angle with this situation is 107 degree. And the angle with this situation is 107 degree. So second is 107 degree. This is going to be 107 degree. That indicates the option C and option D absolutely incorrect. Let's talk about option C. Oh, sorry, third, this one. Again, carbon के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कर रहे हो. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. इसका मतलब अराउंड कार्बन वी हैव 4 सिंगल बॉन्ड एंड अ 0 लोन पेयर. सो टोटल इज गोइंग टू बी 4. अगर 4 हैं तो 4 लाइंस ड्रॉ करो. सबसे पहली वाली लाइन s ऑर्बिटल, बाकी तीनों लाइन p ऑर्बिटल. तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और आपके पास सिचुएशन है 4 सिंगल बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, so obviously angle is going to be 109.5 degree. The 109.5 degrees here, and consequently Bravo is the right answer. Okay, I hope you get the logic. I hope you get the point. Question number 6. Okay, a sample of gas occupies 240 cm cube at 37 degrees Celsius and 100 kilopascal. How many moles of gas are present in this sample? First of all, we have वॉल्यूम 240 cm क्यूब. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 240 into 10 to the power -6 कर लेते हैं. वी हैव 37 डिग्री सेल्सियस.
इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं. It's going to be, I think, 300 Kelvin. 273 plus 37 is going to be 310. Pressure is 100 kilopascal. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,000 pascal हो जाएगा ये. Okay. And we need to find out the moles of gas. So let's apply the PV equals to nRT thing. We need to find out the moles. So moles अगर मुझे determine करने तो ये हो जाएगा PV upon RT. Pressure आपको दिया हुआ है 100,000 kilopascal, 100,000 pascal. Volume दिया हुआ है 240 into 10 to the power minus 6 divided by R. R की value is known, which is 8.31. Temperature is 310. तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? N की वैल्यू आ जाएगी 9.32 into 10 to the power minus 3 moles. All right. So guys, B is going to be the correct answer. Question 7. PQRS represents 3 different structures of an element. Which structures are giant molecular? सबसे important बात, giant molecular. Okay. So P is basically graphite. And Q is basically diamond. And R is basically Buckminster fullerene, जिसको हम simple word में bucky ball भी कहते हैं. And bucky ball का formula होता है C60. All right. और ये नैनो पार्टिकल होता है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ाया आपको, ये नैनो पार्टिकल होता है और इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. दैट मींस कि R जो है वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगी, तो C गलत, D गलत, क्योंकि R सिंपल मॉलिक्यूलर है, जॉइंट मॉलिक्यूलर नहीं है. तो ऑब्वियसली A भी गलत, क्योंकि उसमें वो सिंपल मॉलिक्यूलर होगा, जॉइंट मॉलिक्यूलर नहीं होगा. And obviously right answer is going to be B, because graphite जो है वो भी giant molecular होता है, diamond भी giant molecular होता है, because इसमें unlimited number of carbon atoms होते हैं. All right guys, let's start question number 8. The standard enthalpy changes of combustion of carbon, hydrogen and methanol are shown. Okay, which expression gives the standard enthalpy change of formation of methanol in flow juice curve? So first of all, you need to write the formula of methanol. And the formula of methanol is already given in the question, which is CH3OH. वैसे तो आप ये पढ़ भी चुके हैं, तो आपको आना चाहिए. तो आप लिखें सबसे पहले CH3OH. Formation की बात करें तो इसका मतलब you need 3 different constituent elements. The first one is carbon, the second one is hydrogen, and the third one is oxygen. This is standard enthalpy change of formation, जो कि हमसे examiner calculate करने के लिए कह रहे हैं. 1 carbon तो हम इसको 1 रखेंगे. We have 4 hydrogen atoms in total, so we need to put 2 here. We have 1 oxygen, so we need to put half here. Under standard condition, it is solid, it is gas, and it is liquid. मुझे कैसे पता चला ये liquid है? क्योंकि examiner ने मुझे यहाँ state भी दी. Since combustion का data is given in the question, तो मैंने आपको class में कहा था कि whenever combustion का data is given, arrow needs to be numbered. Okay. So this will give you carbon dioxide. Plus, obviously, इसकी भी combustion हो रही है, तो this will give you water. और methanol की जब combustion होगी, तो this will give you both carbon dioxide and water. Combustion of carbon is given, which is minus 394. Combustion of hydrogen is minus 286. We have 2 moles in the equation, so multiply by 2. ये रहे 2 moles. ठीक है? We have 1 mole of methanol, so इसकी combustion is minus 726. So what we can do is कि हम एक clockwise direction में arrow लेंगे. ये दोनों values clockwise direction से match कर रही हैं, इसलिए plus. ये दोनों values match नहीं कर रही हैं, इसलिए minus equals to 0. तो मैं range कुछ इस तरह से करूँगा. Delta HF plus minus 726 minus 394 minus 286 times 2 equals to 0.
So ये हो जाएगा delta HF minus 726 plus 394 plus 286 times 2 equals to 0. Now we need to find the value of this one. मैं ये सारी चीजें equals to के right hand side पे लेके जाऊंगा. तो ये हो जाएगा आपके पास delta HF equals to plus 726 minus 394 minus 286 times 2. Now you need to check कि ये option कहाँ लिखा हुआ है. Plus 726 ये रहा, ये plus 726 है और ये भी plus 726 है. ऑलराइट, सो इसका मतलब B और D दोनों रॉन्ग, क्योंकि वहां plus 726 नहीं आ रहा आपके पास. ओके, उसके बाद है आपके पास -394. तो -394 आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी है. ठीक है, तो ये दोनों तो टर्म्स बिल्कुल सही लिखी हुई है. फिर आपके पास -286 टाइम्स 2, तो -286 टाइम्स 2, यहाँ पर -286 तो है, टाइम्स 2 नहीं किया, इसका मतलब ये गलत, and therefore C is going to be the right answer. Okay, I hope you get the point. Next, question number 9. The equation for a chemical reaction is shown. All substances are in their standard states. Which statement describes the standard enthalpy change of reaction for this reaction? The enthalpy change when a total of 1 mole of product is obtained. Oh, nahi bhai, there are total 7 moles of product. This is 7 moles and this is 4 moles of reactant. All right. So this statement is going to be incorrect because we have 7 moles of product. The enthalpy change when a total of 1 mole of reactant is reacted. Total 4 moles है reaction के लिए. So this statement is also incorrect because stoichiometric equation से link नहीं हो रहा statement. ठीक है. Next, enthalpy change when 1 mole of water reacts. This is 3 moles of water. That's also incorrect, and therefore D is going to be the right answer. The enthalpy change when 6 moles of hydrogen fluoride are produced. That's correct, because 6 moles of hydrogen fluoride produced हो रहा है. तो ये standard enthalpy change of reaction की definition को follow कर रहा है, stoichiometric equation को follow कर रहा है. All right. Now the next is question number 10. Acidified potassium magnate 7 reacts with iron 3 ethane dioate. The reaction taking place are shown. How many moles of iron 2 ethane dioate reacts with 1 mole of potassium magnate 7? So guys, when we have 1 mole of KMnO4, how many moles of iron 2 sulfate should react together? That is a whole scenario. अब आप note करो. This is the loss of electron, oxidation हो रही है. This is also a loss of electron, oxidation हो रही है. So both the equation shows oxidation, whereas this is the gain of electron, which means it is reduction. Okay. तो total यहाँ पर कितने electrons हो गए 3 और यहाँ पर total electrons कितने हो गए 5. तो in order to balance the number of electrons, मैं क्या करता हूँ, मैं इस equation को 3 से multiply कर लेता हूँ और इन दोनों equations को मैं 5 से multiply कर लेता हूँ. Okay. So what we can do is कि मैं इस equation को 3 से multiply कर रहा हूँ because total 3 moles हैं आपके पास. तो जो मैं 3 से multiply करूंगा तो ये हो जाएगा 3 MnO4 negative plus 24 hydrogen ions plus 15 electrons three Mn2 plus 12 water molecule. Okay. Obviously मैं अब इस equation को multiply करूंगा 5 से दोनों को. तो जब मैं सबसे पहले आयरन वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 5 Fe2 प्लस एरो 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन. ओके. सिमिलरली जब मैं इथेन डायोएट वाली इक्वेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 5 C2O4 minus एरो 10 CO2 plus 10 electrons. All right. Now, check. We have 15 electrons here, and we have total 15 electrons here. They will cancel out with each other. So the final equation is going to be
like this, 3 MnO4 negative plus 5 Fe2 plus 5 C2O4 2 minus एरो, बाकी सारी इक्वेशंस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं जगह कम है मेरे पास, तो आप समझ लीजिए ये भी लिखना है मुझे, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ऑलराइट, सब लिख के दूंगा मैं यहाँ पर। ऑलराइट, बट जगह कम है इसलिए मैं प्रोडक्ट कर दूं इसको। 20, अच्छा एक मिनट, 24 हाइड्रोजन आयंस भी तो है ना हमारे पास, वो भी लिखें। और मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट। ओके, यानी प्रोडक्ट में मेरे पास ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी और ये भी। ओके, बट जगह नहीं है तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। और मैंने शॉर्ट बेटा इसलिए भी किया है कि वी नीड टू कंपेयर Rn2 वर्सेस Rn2 इथेन डायरेक्ट वर्सेस KMnO4. ऑलराइट, सो वी नीड टू रिलेट दीज टू एक्सप्रेशंस। सो बहुत ऑब्वियस सा है कि मेरे पास यहाँ 3 मोल्स हैं और यहाँ मेरे पास 5 मोल्स हैं। एग्जामिनर कह रहा है अगर ये 1 मोल हो तो बताओ ये कितना होगा। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 5 डिवाइड बाय 3 इज गोइंग टू बी 1.666 moles, that is 1.67 moles. So B is going to be the right answer. All right, next question. When copper is added to a solution of silver ions, the following equilibrium is established. Okay, what is the concentration of silver ions at equilibrium when concentration of copper ion is this? Kc की value is given. Obviously हम सब जानते हैं कि जब मैं Kc का expression लिखूंगा, I'm not going to use it because solid है. I'm not going to use it either. It is also solid. Okay, so Kc का जो expression होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. Concentration of product, और product में मेरे पास है copper ions over concentration of reactant. Reactant में मेरे पास silver ions. Since silver ions has 2 moles, इसकी power is square. Okay, Kc की value is given 1.0 into 10 to the power 5. Concentration of copper ion is 0.10. Silver ion की concentration मालूम करनी है तो हम x ले लेते हैं, इनफैक्ट x का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.10 डिवाइडेड बाय 1.0 into 10 to the power 5, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू हो जाएगी गाइस आपके पास 1.0 into 10 to the power -3 mole per dm cube. Okay, let me check one more time. 0.1 divided by 1 exponent minus exponent 5. So it's going to be this. Answer this. Yes. So right answer is going to be C. Okay. Now the next question is question number 12. X, Y, and Z are elements in period 3 of the periodic table, the result of some experiments carried out with compounds of these elements as shown. Which statement could be correct? Okay. तो कह रहे हैं कि X is aluminum and Y is magnesium. अब explanation देखिएगा। हाँ, अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लूंगा और उसको वाटर में प्लेस करूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ले रहा हूं और उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी pz ऑर्बिटल इट कैन इजीली हाइड्रोलाइज विद वाटर, इट इज आल्सो करेक्ट फॉर एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लूंगा और उसको HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड ड्यूरिंग आफ्टर द रिएक्शन इट विल टर्न इनटू अ सॉल्ट, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के लिए जो X है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। जो एल्यूमिनियम के लिए X है वो बिल्कुल ठीक है, दैट्स राइट। आगे चलते हैं। Y इज मैग्नीशियम। सो अगर मैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड लूं और उसको वाटर में प्लेस करूं तो जाहिर सी बात है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, विच इज राइट।
अगर मैं मैग्नीशियम का क्लोराइड लूं और उसको वाटर में प्लेस करूं तो वो डिसॉल्व होगा, इट इज ऑल्सो राइट। अगर मैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड लूं विच इज अ बेसिक ऑक्साइड बाय द वे, तो वो HCl से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा, विच इज ऑल्सो राइट। तो ये स्टेटमेंट Y के लिए बिल्कुल ठीक है। सो आई बिलीव A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बाकी ठीक हो सकते हैं। क्यों नहीं ठीक होंगे जरा देख लेते हैं। लेट सपोज X जो है वो सिलिकन है, सिलिकन का जो ऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है फॉर सिलिकन। सिलिकन के क्लोराइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो हाइड्रोलाइज होगा, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है सिलिकन के लिए। सिमिलरली सिलिकन का जो ऑक्साइड है वो HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि सिलिकन डाइऑक्साइड is an acidic oxide, so it cannot react with acid. All right, which is why B is incorrect. Why is aluminum? Aluminum के लिए तो ये सब कुछ ठीक है। Z is phosphorus, तो phosphorus के लिए देखते हैं। phosphorus का जो ऑक्साइड है अगर तुम उसको वाटर में प्लेस करोगे तो जाहिर सी बात है वो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, यानी सोल्यूशन एसिडिक होगा, ये बात सही है। फॉस्फोरस का जो क्लोराइड होता है वो PCl3 होता है या PCl5 होता है, अगर तुम उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोलाइज होगा। फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है और वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, व्हिच इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड सेम गोस फॉर डी, डी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सोडियम का जो ऑक्साइड है वो HCl से रिएक्शन करेगा, ठीक है, बिकॉज वो बेसिक ऑक्साइड HCl से रिएक्शन कर लेगा। सोडियम का जो क्लोराइड है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, व्हिच इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर इट इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन 13, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। A solid period 3 element Q is reacted with oxygen gas, compound R is formed. तो सबसे पहली बात, एक सॉलिड है पीरियड 3 एलिमेंट का और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। When R is added to water, pH decreases. इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। सही है। What could be the empirical formula of R? Okay. कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर सोडियम लेता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्योंकि उन्होंने मुझे सॉलिड कहा, इसका मतलब क्लोरीन गलत, क्योंकि ये तो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है और गैस होता है। सही है। From my perspective, sodium, magnesium, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी गलत, बिकॉज जब इसका ऑक्साइड बनाएंगे और उसको वाटर में प्लेस करेंगे तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, जबकि यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, इसलिए गलत। इसका भी एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, ये इनसॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है, इन दोनों के ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनसॉल्युबल, तो इन दोनों की वजह से हमें सॉल्यूशन एसिडिक नहीं मिलेगा, इसलिए ये दोनों हमने गलत कर दिया। इसका मतलब आंसर या तो फास्फोरस है या सल्फर है। अब फास्फोरस के ऑक्साइड्स देख लें आप, एक होता है P4O10 और इसका होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ऑलराइट। अब P4O10 तो हमने तो एलिमेंट Q किया हुआ है, तो ये हो जाएगा Q4O10 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Q2O5, हाफ हो जाता है मॉलिक्यूलर का। सही है। अच्छा, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा QO3 और इधर क्या लगाओगे आप, QO2। तो अब चेक करें कहाँ लिखा हुआ है, ये गलत, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, ये लिखा हुआ।
ये भी गलत, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं। ये भी गलत, एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं। राइट आंसर इज बी, बिकॉज ये हमने एम्पेरिकल निकाला था इसके थ्रू। सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question number 14. Metal T reacts with water to produce a colorless solution. Okay, that's an important statement कि colorless solution है और water के साथ reaction हो रहा है। Metal T का a white precipitate is produced when the colorless solution is mixed with aqueous sulfuric acid. When you add sulfuric acid and a white precipitate is formed, इसका मतलब barium ions present। यह आपका salt analysis है, ठीक है। So barium ions actually तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको बेरियम को वाटर में प्लेस करूंगा तो इट विल टर्न टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर मैं मैग्नीशियम को वाटर में प्लेस करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। इसका मतलब इसका कलरलेस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये गलत। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेगा जब पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करेगा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दोनों के इन तीनों के कलरलेस सॉल्यूशन आ गए। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है, तो जब मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट बनेगा जिसके आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। लेकिन मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दिखानी है आपको। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो इट विल टर्न टू सोडियम सल्फेट, और आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन देंगे आपको, एंड ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इन दोनों के प्रेसिपिटेट्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। और मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं इसका मतलब बेरियम आयंस प्रेजेंट। तो बेरियम आयंस अगर प्रेजेंट मैंने कह दिया था दैट वाज अ शॉर्टकट टेक्निक, तो आंसर ए हो जाना चाहिए था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. When calcium nitrate thermally decomposes, oxygen is one of the product. Okay. So देख लेते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट जब थर्मली डिकम्पोज करता है तो ऑक्सीजन मिलती है। हाँ जी बिल्कुल मिलती है। उसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलती है, और ये ऑक्सीजन आ गया। आप चाहें तो इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। Which volume of oxygen is produced under room condition when 0.50 moles of calcium nitrate thermally decompose? That's an easy story actually. आप जानते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 2:1 का है। तो अगर आपके पास 0.50 मोल आया है तो बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 0.5 divided by 2 is going to be 0.25 mol. सही है। Now we need to find the volume at under room condition. इसका मतलब 24 DNQ वॉल्यूम यूज करूंगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 DNQ से into 24, it's going to be 6 DNQ. So right answer is going to be an A. Okay, I hope it makes sense to you. Question 16. L, M, and N are group 2 metals. L react more vigorously with dilute hydrochloric acid than N. Okay, ये बहुत ही important statement है कि L reacts more vigorously with dilute hydrochloric acid than N. इसका मतलब L की reactivity N से ज़्यादा है। सही है? Reactivity of L
is greater than m. सही है. Next is m metal m hydroxide is more soluble than n. And obviously फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड है. सो हम यहां से एक और पॉइंट निकाल लेते हैं कि डाउन द ग्रुप टू hydroxides solubility increases. Okay, क्योंकि ये ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मूले से पता चल रहा है. सो हम जानते हैं कि जनाब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल, strontium hydroxide slightly soluble and barium hydroxide is fully soluble. तो अगर ये soluble है और ये insoluble है तो इसका मतलब ये जो आपके पास है ये M हो जाएगा और ये जो आपके पास है ये N हो जाएगा. ये मेरी इनिशियल असेसमेंट है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्या है आपके पास. जो L है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू N. तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इंक्रीजेस. इसका मतलब बेरियम इज मोर रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव तो बेरियम, तो L तो बेरियम हो जाएगा. सही है, ये तो कंफर्म हो गया. अब मसला ये है कि M इज मोर सॉल्युबल देन N, तो M इज मोर सॉल्युबल देन M, तो ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल देन strontium hydroxide, which means A is incorrect. Okay, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. और strontium hydroxide is more soluble than calcium hydroxide. So I think B is going to be the right answer. Let's talk about option C. Option C तो वैसे गलत हो गया बेटे, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी तो बेरियम से कम होती है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है. एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन strontium hydroxide, ये सही है, लेकिन ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम होती है. स्ट्रॉन्शियम की रिएक्टिविटी नो डाउट रिलेटिवली ज्यादा होती है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. क्वेश्चन नंबर 17. The table shows some reactions of white compounds G. Silver nitrate is added to solution of G, followed by aqueous ammonia. Precipitate is formed, which does not dissolve when ammonia is added. ये रिएक्शन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट थिंग, क्योंकि उन्होंने यहाँ प्रेसिपिटेट लिखा है, उसका कलर नहीं लिखा है, इसका मतलब इट कैन बी ब्रोमाइड और इट कैन बी आयोडाइड, बिकॉज आयोडाइड इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन aqueous ammonia. Bromide is partially soluble with dilute aqueous ammonia, but with concentrated it is completely soluble. So they didn't mention the exact information, but I believe it's either bromide or iodide. Chloride won't be the right answer for this. Okay, chloride नहीं होगा for sure, कह रहा हूँ. Bromide और iodide में से कोई एक होगा. Let's do some more test. Solid G is warm with concentrated sulfuric acid. That's very important test because concentrated sulfuric acid is an oxidizing agent. So when you react it with solid G, obviously mixture of gases is formed, including hydrogen sulfide, and that's a very powerful statement. Because मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, H2S में और वाटर. तो जो H2S गैस है ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड की वजह से मिलती है, बिकॉज आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो एक बात तो तय हो गई कि H2S गैस कम्स ओनली फ्रॉम आयोडाइड आयंस. इसका मतलब ये आयोडाइड आयंस थे, ब्रोमाइड तो नहीं हो सकते.
क्योंकि ब्रोमाइड के केस में कभी भी H2S गैस नहीं मिलती। ओके, सो एक बात तो तय हो गई कि क्लोराइड नहीं हो सकता, सल्फेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को हम सल्फेट से टेस्ट नहीं करते और सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आइदर ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब जाहिर सी बात है ब्रोमाइड गिव्स bromine, sulfur dioxide and water after the reaction with concentrated H2SO4. But with sodium iodide, obviously you are going to get H2S gas, and that is the only option left for us. So D is going to be the right answer. Okay. And we have done all these equations. Bromide की भी equations मैंने कराई नहीं आपको, iodide की भी करवाई नहीं है, ठीक है, ये iodide की थी, bromide की अगर आप देखेंगे तो उसमें ये products बन रही हैं। Question 18. Under standard condition, which statement is correct? Chlorine oxidizes bromide into bromine. That's the right answer because chlorine की reactivity bromide से ज़्यादा होती है. Chlorine can reduce bromide. No, chlorine is an oxidizing agent. It cannot reduce. Chloride can oxidize. Chloride is a reducing agent. Cannot oxidize bromine. Chloride can reduce bromine. No, because उसकी reactivity कम होती है. That's an easy question. ये बिल्कुल IGCSE से related स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये मेरे लिए, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एनी हाउ बच्चों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया एंड हाइड्रोजीन आर टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0। इफ यू रिमेंबर दीज वैल्यूज, मैंने आपसे कहा था कि ये याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सेम, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, so difference is going to be 0. If the difference is 0, then it means the net dipole is 0, not polar. So NN bond in hydrazine is polar? No, it is non-polar because electron negativity difference is going to be 0. Correct? So option is incorrect. NH3 and this have lone pairs of electron, but nitrogen does not. NH3 में lone pair होता है, that's no doubt about it. हाइड्रोजीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बट लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड इन इट्स between them, right? Nitrogen belongs to group 15. It has 5 valence electrons. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So बेटा नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर्स हैं इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जबकि वो कह रहा है डज नॉट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत. The oxidation number of each nitrogen is +2. Let's talk about this. N2H4 है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, 2x ले लो, +1 × 4 = 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देन x = +2. ओह, नॉट एट ऑल +2, इट्स गोइंग टू बी -2, क्योंकि ये +4 था, जब ये राइट हैंड साइड पे इधर जाएगा तो ये -4 होगा, तो ये -2 आएगा, उसने कहा +2 व्हिच इज रॉन्ग. राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. और सही बात है, नाइट्रोजन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, so it has high bond energy value and therefore it has high activation energy when it will react with hydrogen gas. Okay, question number 20. सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि एक ही कार्बन से तीनों क्लोरीन एटम्स को अटैच कर दो. आई थिंक वी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास. ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन के साथ 2 अटैच कर लीजिए और एक यहाँ शिफ्ट कर दीजिए. थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन के साथ 2 रखिए और यहाँ एक शिफ्ट कर दीजिए, राइट? इधर भी एक रखिए, इधर भी एक रखिए, यानी ये दोनों तो एज इट इज रखिए, इस वाले क्लोरीन को उठाकर इस कार्बन पे शिफ्ट कर दीजिए, ये आ गया. सही है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस कार्बन पे एक क्लोरीन और सेंटर वाली कार्बन पे 2 क्लोरीन कर लीजिए. कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज होगी. राइट आंसर इज गोइंग टू बी 5. ओके, और
और कोई पॉसिबिलिटीज हमें मिल नहीं रही यहाँ पर। नेक्स्ट, compound L has the molecular formula C10H16. A sample of L reacts with an excess of hot concentrated acidified potassium manganate 7. Compound M is produced. तो सबसे पहला एक काम करते हैं, इसके ऊपर जरा जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एल्कीन का और चेक करते हैं कि ये कंपाउंड है क्या। तो ये हो जाएगा C10H2 times 10 C10H20 and we have 16। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। इसका मतलब दिस इज एन एल्कीन एंड दिस एल्कीन कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 20 आने चाहिए थे, यहाँ 16 है। इसका मतलब दिस कंपाउंड कंटेन 2 डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एल? 2 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा, अब जरा नोट कीजिए सबसे अहम बात, दिस इज योर कीटोन, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन इज कीटोन एज वेल। ओके, तो आप जानते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्कीन को, हमारे पास या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या फिर कीटोन बनता है, या दोनों भी बन सकते हैं। और इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों बने हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना हुआ है, कीटोन भी बना हुआ है। सही है, तो चेक करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन यहाँ इन ऑप्शंस में से हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। और देखें, स्ट्रेट अवे बात करते हैं, ये CH है, विल टर्न टू COH, ये भी CH है, विल टर्न टू COH। जब कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करेगा ये भी COH बनाएगा और ये भी COH बनाएगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये CH है, ये भी COH बनाएगा, ये CH है और ये भी COH बनाएगा और बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मुझे तो दोनों चाहिए, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दिस वन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज CH ग्रुप है, दिस वन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज CH ग्रुप है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। This one gives you ketone, all right, and this one gives you carbon dioxide and water. So we have, it is also incorrect because यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और कीटोन मिल रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास कितने कीटोन्स हैं? दो कीटोन्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। This is the shortcut technique I'm using, all right, and we have discussed this concept in class in such a detail कि अब हम shortcut apply करें। Around 10 to 12 examples मैंने दिए आपको क्लास में इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है? Oh God, okay. This is CH. Obviously, it will turn to COH. This is CH. Obviously, it will turn to COH. बॉन्ड यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाएगा। Obviously, this option is going to be incorrect because हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एक है, जबकि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आ रहे हैं। So right answer is going to be an A. अब कैसे है A? जरा देख लीजिए। A इस तरह से है कि ये डबल बॉन्डेड C है, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू कीटोन। ओके, ये डबल बॉन्डेड CH है तो इट विल गिव यू COH। ये डबल बॉन्डेड C है तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू कीटोन, और ये आपको ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा क्योंकि CH2 ग्रुप है। तो आप नोट करो, यहाँ 2 कीटोन्स थे तो मुझे यहाँ से 2 कीटोन्स मिल रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, मुझे यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, which is why A is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. Next question is easy. Many reactions takes place in engine catalytic converter of the car. Which pair of substances is produced both by the reaction in car engine and in the catalytic converter? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कैटालाइटिक कन्वर्टर में जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कैटालाइटिक कन्वर्टर में नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत हो गया। सही है, कार इंजन में क्या क्या चीजें बनती हैं ये भी पता होना चाहिए भाई। कार इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, और
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी होता है। ये कार इंजन से बनता है, राइट। कैटालाइटिक कन्वर्टर में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है, वाटर भी मिलता है और नाइट्रोजन भी मिलता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है कैटालाइटिक कन्वर्टर से। सो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और वाटर ठीक है। देखो ना, वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, दोनों मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिलता है, तो ये दोनों ठीक होंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। लेट्स टॉक अबाउट सी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं मिलता, वो हमें कार इंजन से तो मिलता है, लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर से नाइट्रोजन मिलता है, इंजन से नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें कार इंजन से तो मिलता है, लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर से नहीं मिलता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. 2-bromopentane is heated with an excess of ethanolic sodium hydroxide. How many different hydrocarbons are produced? What kind of hydrocarbons are produced? Actually, alkenes are produced. Okay, remember, alkenes are produced. अब मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला कि ये एक अल्काइल हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है. So whenever alkyl halide undergoes elimination reaction, alkenes are formed. Okay, and by the way, we need to consider stereoisomerism as well as structural isomerism once we form an alkene. तो 2-bromopentane, तो जाहिर सी बात है alkenes मुझे मिलेंगी यहाँ से. 2-bromopentane से pent-1ene मिलेगा, pent-2ene मिलेगा. Oh God. Okay, देखो ये है आपके पास CH3, CH, Br, CH2, CH2, CH3. गाइस यहाँ से मैं सबसे पहले इस CH3 से बना रहा हूँ, तो ये मुझे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 and CH3. That is your pent-1ene. Okay. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अब यहाँ से बना लूँ, एलिमिनेशन कर लूँ. जब मैं यहाँ से एलिमिनेशन करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी CH डबल बॉन्ड CH, then CH2 and then CH3. ठीक है. अच्छा, आप जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा क्योंकि दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच है और इसमें कोई कायरल नहीं है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है. लेकिन ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे चले जाए तो सिस हो जाएगा, और अगर ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायगोनली अटैच हो जाए तो ट्रांस हो जाएगा. तो ये बेसिकली आपको क्या देगा? मजीद सिस पेंटूइन देगा और ट्रांस पेंटूइन देगा. तो आपके पास एक आइसोमर ये हो गया, सिस पेंटूइन का दूसरा आइसोमर हो गया, ट्रांस पेंटूइन का थर्ड आइसोमर हो गया. ओके, 3, मुझे 3 से ज्यादा मिल नहीं रहे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. 24, bromopropane, which is your alkyl halide, reacts with water as shown. That's called hydrolysis. इसमें Br चला गया और उसकी जगह पे OH आ गया. Which statement is correct? It is an elimination reaction. No, it is nucleophilic substitution reaction. Next is, this is hydrolysis reaction. Yes,
ये हाइड्रोलिसिस भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, सो दिस माइट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, redox रिएक्शन, नॉट एट ऑल। मैंने यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किए हुए, इसलिए ये रिडॉक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, this reaction tends to proceed via SN1 mechanism. Absolutely incorrect, because ये primary alkyl halide है, and primary alkyl halide always undergoes SN2. SN1 mechanism always goes via tertiary alkyl halide, which is why it is also incorrect. That's an easy question, by the way. Question 25. Which product is formed when 3-methyl pentane 1,3,4-triol is heated under flux with an excess of acidified potassium dichromate 6? ओके, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सही है, तो वो कह रहे हैं पेंटेन, दैट मींस कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। फिर वो कह रहे हैं 1 3 4, फर्स्ट कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे OH, फोर्थ कार्बन पे OH। फिर वो कह रहे हैं 3 मिथाइल, तो ये आ जाएगा आपका 3 मिथाइल। सही है, ओके। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है जनाब, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो इसको, CH3 CH, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। अब तुम नोट करो, ये तुम्हारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, इट विल टर्न टू कीटोन, और ये तुम्हारे पास हो गया प्राइमरी अल्कोहल, इट विल टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूं K2Cr2O7 से, जैसे वो चाह रहे हैं एग्जाम में मुझसे, तो ये हो जाएगा CH3, देन CO, देन COH, टर्शियरी अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज, ये CH3 एज इट इज रहेगा, देन CH2 एंड ऑब्वियसली COOH, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस अगेन, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसको अरेंज करके दिखाते हैं जो एग्जामिनर ने लिखा है उस पैटर्न पे। ये CH3 एज इट इज, ये CO भी एज इट इज, उसके बाद कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ब्रैकेट में आते हैं, ये पहले बाद में हो सकते हैं ब्रैकेट्स, CH3 पहले OH बाद में, लेकिन इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये है CH2COH। सही है, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। CH2COH, CH2COH, CH2COOH, ये लिखा हुआ COOH, ये लिखा हुआ CH2, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद आपके पास है कार्बन, कार्बन के साथ है OH एंड CH3, तो कार्बन के साथ है OH और CH3, मैंने कहा था ये आगे पीछे हो सकते हैं। फिर है CH3CO, फिर है CH3CO, तो ये पूरा टैली हो गया इससे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसको देख लीजिए, ये है COOH, CH2, CO, कार्बन, OH, CH3, तो यहाँ पर कीटोन जो है वो CO CH3 वो मिसिंग है, इसलिए ये गलत है। फिर आपके पास है CHO, दैट इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो अंडर रिफ्लक्स नहीं बनता, विदाउट रिफ्लक्स होता है, इसलिए ये भी गलत। देन फिर आपके पास है COH, CH2CO, CO और CO के साथ CH3, तो कीटोन तो आपके पास एक ही था, कीटोन 2 तो नहीं थे आपके पास, यहाँ तो 2 कीटोन कर दिए एग्जामिनर ने, राइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत। क्वेश्चन 26, methanol is naturally occurring alcohol when methanol is heated with concentrated sulfuric acid. If it is reacting with concentrated sulfuric acid, then it means dehydration takes place. See, what would be the structure of T? So अगर मैं इस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन करूं, तो डिहाइड्रेशन आप जानते हैं हमेशा नेबर कार्बन के हाइड्रोजन के थ्रू होती है, इसके थ्रू भी हो सकती है, इसके थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को यूज कर रहा हूं तो मैं P आ गया, और अगर मैं इस हाइड्रोजन को यूज करके बना रहा हूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर ये बनेगा,
कार्बन एटम को नंबर असाइन करो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 3,4 डाइईन है मेरे पास। नाम मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चाहिए। यहाँ 3 4 है, यहाँ करो 1 2 3 4। oops, wait 1 2 3 4 5। यह 4,5 पोजीशन है डबल बॉन्ड। ओके, इसलिए क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। रिंग के अंदर करेगा ना, रिंग से बाहर तो नहीं कर सकता, इसलिए गलत। ये भी गलत क्योंकि कीटोन तो हमें मिल ही नहीं रहा, हमें तो एल्कीन मिल रही है। कंपटीशन जो है वो सी और डी के अंदर है। कार्बन एटम का नंबर असाइन कर लेते हैं 1 2 3 4। भाई ये है 2,3, तो 2,3 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अब डी क्यों सही है? इसलिए क्योंकि हमने इसकी वर्किंग करनी है, और वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि हम इसको 1 कहें, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो ये 4,5 है, तो 4,5 वाला ये है, तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 26 के बाद 27। क्वेश्चन 27 अगेन technical part. Structural isomerism only should be considered when answering this question. All the isomeric alcohols with the molecular formula C5H12O are added separately to form alkyne ecosydene. How many of the isomers gives a yellow precipitate? Yellow precipitate का मतलब होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, और आइडोफॉर्म टेस्ट उस वक्त पॉजिटिव आता है आपके पास अल्कोहल में जब CH3 CHOH ग्रुप हो। If this group is available, positive test of iodoform will appear. All right. So मुझे इस अल्कोहल के लिए वो बनाने आइसोमर्स जिसमें CH3 CHOH ग्रुप अवेलेबल है। So बनाते हैं CH3 CHOH CH2 CH2 CH3. This will give you positive test of iodoform. दूसरा बना लेते हैं CH3 CHOH। इस CH के साथ एक ब्रांच अटैच कर दो और ये CH3। It will give you iodoform का positive test also. All right. What else? इसके अलावा कुछ और बन सकता है? अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं बन सकते। ओके, so right answer is going to be 2. Question number 28. When compound X is heated with potassium dichromate 6 in acidic medium, color changes from orange to green. इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। जब टॉलरेंस रिएजेंट हो रहा है, नो रिएक्शन, इसका मतलब नो एल्डिहाइड। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 240 NPH ऑरेंज प्रेसिपिटेट, इसका मतलब कीटोन। व्हाट कुड बी कंपाउंड एक्स? तो कीटोन उसी वक्त मिलता है ऑक्सीडेशन के बाद जब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, मतलब कंपाउंड एक्स कंटेन सेकेंडरी अल्कोहल। तो इफ कंपाउंड एक्स कंटेन सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है बिकॉज बी इज एन एल्डिहाइड, ऑप्शन सी भी नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, बिकॉज वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, and secondary alcohol gives ketone. Oxidation occur. Gives ketone, क्योंकि कीटोन का टॉलरेंस टेस्ट नहीं आता, लेकिन 240 NPH का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। ओके,
Question number 29. Question number 29. 1 mole of each of the following 4 compounds is react separately with an excess of sodium and excess of sodium carbonate. Which compound produces the same volume of gas? ये important है, same volume of gas with each 2 reagents. सही है? So option A is incorrect because can react with sodium, not with sodium carbonate. Option C is incorrect because it is an aldehyde. Cannot react with sodium carbonate. Okay, a combination exists between B and D. This will give you sodium metal. This will react with sodium metal, but this will react with carbon dioxide, so sodium carbonate. The same amount of gas will produce. Okay, makes sense. See guys, when you react this compound with sodium metal, obviously 2 moles of sodium metal use हो रहे हैं, तो 2 moles of sodium metal use होने से 1 mole of hydrogen gas मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है? लेकिन अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे तो obviously you need 2 mole of this compound in order to make 1 mole of carbon dioxide, तो मिलेगी नहीं हमें यहाँ से, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं मिलेगी, so 1 mole of carbon dioxide नहीं मिलेगी. कब मिलेगी? क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक है. We need 2 carboxylic acid because we have 2 sodium atom here. So right answer is going to be obviously D, क्योंकि ये दोनों सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे 1 मोल. ये इंपॉर्टेंट स्टफ है, इसको आप यहाँ कह सकते हो gives 1 mole of hydrogen gas, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, अब यहाँ पर सोडियम आ जाएगा और यहाँ पर भी सोडियम आ जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा. अब अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो आप यहाँ से कह सकते हैं कि दिस विल गिव यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेम अमाउंट आ गया आपके पास, ये भी 1 मोल ऑफ गैस और ये भी 1 मोल ऑफ गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस हो गया, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया, ठीक है? मैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन डी से करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी मेरी भी और आप लोगों की भी. ये हो जाएगा इथेन डाई एसिड है ये बेसिकली, आप इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं. इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. एंड ऑब्वियसली जब सॉल्ट बनेगा तो NaO CO O Na बनेगा. ओके, so that is the whole reaction behind this concept and I hope you get the point कि भाई D में 1 mole of carbon dioxide मिलेगा, इस B में 1 mole of carbon dioxide मिलेगा because we have only 1 carboxylic functional group, instead we need 2, all right, to get 1 mole of carbon dioxide. Question 30. An infrared spectrum shows a broad peak at 3000. So if you say broad peak, that shows it must be OH of CWH group, क्योंकि broad peak तो सिर्फ इसी की होती है. Okay, next. And a strong peak is this.
If you say strong peak, then it means carbonyl group present. Okay. Okay, and which substance could have produced this spectrum? No, because 3000 centimeter inverse पे broad peak OH of carboxylic acid की होती है, and this is your ester, so it's not going to be the right answer. Alcohol की peak is absent 3350 पे, ये भी गलत. Propanol में broad peak 3000 centimeter inverse पे नहीं आती, तो right answer is C because it is carboxylic acid. Okay guys, let's move on to question number 31. Question 31 says, in an experiment, 10 cm cube of an organic compound J in the gaseous state is reacted with an excess of oxygen. All right. Steam, 20 cm cube of carbon dioxide and 5 cm cube of nitrogen are the only products. All gas volumes were measured at the same temperature and pressure. What could be the identity of J? So we have what here? 10 cm cube of organic compound. We have 20 cm cube of carbon dioxide. We have 5 cm cube of nitrogen and steam as well. Okay, so what we can do is the J is hydrocarbon. It is reacting with oxygen, converting into carbon dioxide, water, steam and nitrogen gas. Okay, ये सारे के सारे gaseous state के अंदर हैं according to the statement of the examiner. Water जो है वो steam में है, nitrogen gas में. Okay, this is 10 cm cube, this is 20 cm cube, and this is 5 cm cube. Now take out the ratio of this, so it's going to be 1, it's going to be 2, और ये half हो गया, 10 का half हो गया, तो it's going to be 0.5. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि आपके पास 1 mole of J is reacting with oxygen, converting into 2 moles of carbon dioxide, steam, and half mole of nitrogen. Okay, so did you notice something? Now we have only one nitrogen atom here. All right, whereas here we have 2 carbon atom. So we have 2 carbon atom and we have 1 nitrogen atom in this compound J. So 2 carbon and 1 nitrogen is here, which means this is right. 2 carbon and 1 nitrogen is here, which is also right. That means C is going to be the right option. यहाँ हमारे पास 2 nitrogen है और 2 carbon है, which is not possible. Okay. Next, in which pairs do both species have same number of unpaired electrons in the p orbital? Unpaired electrons in the p orbital. Oxygen has an atomic number of 8, 1s2, 2s2, and then 2p contain 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And then Cl plus. Cl plus has total 16 electrons, I believe. Okay. So 16 electrons की electronic configuration कर लेते हैं. Cl plus के लिए neon तो as it is रखिए आप. 3s2 हो गया and 3p. So guys, 16 में से आप 12 electrons distribute कर चुके हैं. 4 electrons left. तो 4 electrons को आप distribute करेंगे इस तरह से. So अब आप नोट करें, इसमें भी 2 electrons unpaired हैं, इसमें भी 2 unpaired electrons हैं in the p orbital. इसका मतलब मेरा first statement correct है. Second statement, F plus का मतलब होगा इसमें 8 electrons, right? और गैलियम माइनस है तो इसका मतलब इसमें हो गया 32 electrons according to the atomic number. तो F plus की जो configuration है वो basically ऑक्सीजन जैसी ही होगी, because उसके पास भी 8 electrons थे. ये 1s2 as it is, ये 2s2 as it is, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4. 1, 2, 3, 4. गैलियम में गैलियम के लिए है हमारे पास
18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम आर्गॉन यूज कर लेते हैं. ऑलराइट, सो वी हैव आर्गॉन हियर. These shows total 18 electrons. Argon के बाद आएगा 4s2. 4s2 के बाद आएगा 3d10. 3d10 के बाद आएगा 4p. ओके, ऑब्वियसली 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे. ओके, सो आप नोट करो, यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हिच मींस सेकंड इज आल्सो करेक्ट. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये हम कर लेते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3. इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्रिप्टन, क्रिप्टन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 33. सही. सो मैं 33 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं. तो क्रिप्टन 3 प्लस है. आर्गॉन लिखते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा. इसके बाद आएगा आपके पास 4s2, फिर आएगा 3d10 और फिर आएगा 4p. तो 4p में 33 कंप्लीट करने के लिए 3 आ जाएंगे. तो यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड, यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड, तो ये भी ठीक है बिल्कुल. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. ओके, नेक्स्ट, in which reaction is the underlined element compound reduced? So chlorine has an oxidation state of +1 here. Over here, chlorine is -1. So chlorine changes from +1 to -1. इसका मतलब decrease in oxidation state. इसका मतलब reduction. Okay. So first statement is right. Okay. Next, ammonia is reacting with aluminum, converting into lithium amide and hydrogen gas. So in ammonia, nitrogen has an oxidation state of -3. और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3. तो नाइट्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा. लिथियम इज बेसिकली प्लस, लिथियम इज बेसिकली हियर इज 0. ओवर हियर इट्स +1. तो लिथियम इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑलराइट, जबकि वो कह रहे हैं रिड्यूस्ड हो, तो ये भी गलत. जब सेकंड गलत हो जाता है तो आंसर इज गोइंग टू बी डी. बट ये रीजन यहां लिख देते हैं, lithium is oxidized, not reduced. और नाइट्रोजन पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम. थर्ड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास ऑप्शन के अंदर. सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन था, इसलिए हमने आंसर डी कर दिया. क्वेश्चन नंबर 34. Some polluting gases are removed from car exhaust fumes using a catalytic converter. Platinum or palladium can be used as a catalyst. The reactions are faster when platinum is the catalyst. तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि when platinum is used as a catalyst, reaction is faster. That means with platinum, it has a lower activation energy. Okay. Then they are with palladium in the catalyst. इसका मतलब have higher activation energy. With palladium have higher activation energy. Okay. And the question is some polluting gases. इसका मतलब जो आपके reactants हैं वो pollutant gases हैं. So which statements are correct? First one, platinum acts as a heterogeneous catalyst in these reactions. That's right, because आपके जितने reactants हैं वो सारे के सारे गैस हैं और आपके platinum और palladium catalyst जो होते हैं वो solids होते हैं. तो जब भी reactants और catalyst different physical state में होते हैं उसको हम heterogeneous catalyst कहते हैं. तो first statement is right. Next, the palladium catalyzed reaction have higher activation energies. बिल्कुल सही बात है, यहाँ मैंने लिखा है इनकी हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, प्लैटिनम की लोअर होती है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नंबर थर्ड, द प्लैटिनम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर मोर एक्सोथर्मिक देन द palladium catalyzed reactions. तो आप यहाँ पर बोलेंगे wrong because
catalyst has nothing to do with enthalpy changes. Catalyst has nothing to do with enthalpies. ठीक है? All right, the third statement is wrong. Answer is B. Okay. All right, question number 35. Which statement about ceramics are correct? Guys, ceramics are made up of two compounds. The first one is aluminum oxide and the second one is silicon dioxide. Okay. The first part says ceramics are good electrical conductors. That's absolutely incorrect because aluminum oxide and silicon dioxide doesn't have any free mobile ions or electrons. So they are not good electrical conductor. So first option अगर incorrect हो जाता है तो right answer is going to be C. ये shortcut है हमारा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि ceramics are strong material. Obviously strong ionic bonding होती है, strong material होते हैं. Since they have a strong electrostatic attraction, strong covalent bonding, obviously they have high melting point. ठीक है, तो third statement भी ठीक है, second भी ठीक है. Question number 36. Which type of bonding is present in ammonium carbonate? Guys, ammonium has clear-cut plus charge and 2 minus charge, right? So if you have clear-cut plus and minus charge, then it means you have ionic bonding. आप जानते हैं कि इस अमोनियम आयन में आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है, right? So this is your covalent bonding and this is your dative bonding. So ammonium ions exhibit covalent as well as dative, which is why A is going to be the correct answer. Okay. अगर आप मुझसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इसमें पूछेंगे तो वो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं, और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर बना के दिया है आपको. Okay. Next is the diagram shows the structure of cholesterol. Which statement about cholesterol is correct? इससे पहले कि हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है उसमें दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. सही है. सो आपके पास ऑप्शन है द मॉलिक्यूल कंटेन्स सेकेंडरी अल्कोहल. दैट स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल कंटेन 2 pi bonds. No, we have only one double bond between the carbon atoms, so we have only one pi bond. Only one pi bond, not 2, which means second is incorrect and therefore answer is D. Question 38. Chlorine atoms in the upper atmosphere causes the breakdown of ozone. Which statement about these chlorine atoms are correct? Examiner is talking about chlorine atoms, and chlorine atoms are actually neutral. They don't have any charge. और chlorine atoms को हम free radicals भी तो कहते हैं ना. उसके बाद next, the chlorine atoms act as a catalyst. That statement is true because मैंने reaction start किया था chlorine atom से, at the end मुझे वापस chlorine atom मिल गया. That means it acts as a catalyst. And the next is chlorine atoms are free radicals. Obviously मैंने कहा कि जब neutral species होती हैं तो आप उनको free radicals भी कह सकते हैं, because all free radicals are neutral species. They are atoms. Okay. Second statement is also right. Next, chlorine atoms are formed by hydrolytic fission. Hydrolytic fission, whenever takes place, according to my lecture, cations and anions form. So cations and anions are formed. And obviously when we talk about chlorine, so it needs to be chloride ion, not chlorine atom, which means third statement is incorrect and therefore B is going to be the right answer. Question 39. The compound listed are reacted with hydrogen cyanide. Which compound produces a molecule containing a chiral center? Chiral center, matlab 4 different groups. 4 different groups are attached. Groups भी हो सकते हैं, element भी हो सकते हैं.
And hydrogen cyanide usually react with aldehyde or ketone. Okay, so ये aldehyde है तो ये भी ठीक है, ये ketone है तो ये भी ठीक है, ये ketone है तो ये भी ठीक है. अब वैसे HBr इन तीनों से, HCN इन तीनों से रिएक्शन करेगा, ये बात तो ठीक है, बट इसमें से कायरल कौन देगा उसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ब्यूटेनॉल जब HCN से रिएक्शन करेगा साइनोहाइड्रिन बनाएगा, और मैंने क्लास में समझाया था कि एमसीक्यूज में साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा. कि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है उसको OH बनाओ, उसी के साथ साइनाइड भी अटैच कर दो, एंड दैट्स योर कायरल. दैट्स योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ब्यूटेनॉन, if it is this butanol, और हम इसको HCN से रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी साइनोहाइड्रिन बनाएगा. जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है इट विल टर्न टू OH, उसी कार्बन के साथ साइनाइड, and this is CH2 and this is CH3, so this is also a chiral carbon. Okay, this is also right. Pentane 2-on, pentane 2-on का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, CH3 CO CH2 CH2 CH3. अगर मैं इसको HCN से रिएक्शन करवाऊं तो इट विल टर्न टू साइनोहाइड्रिन अगेन. ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेंगे OH में, ऑक्सीजन के साथ साइनाइड अटैच करेंगे, यानी OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसी के साथ साइनाइड, एंड देन दिस CH2 CH2 एंड CH3. तो आप नोट करें ये भी कायरल क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं. देन इट मींस 1 2 3 4, देन इट मींस this is also correct, and therefore A is going to be the correct option for this. Now the last question is carboxylic acid. Okay, carboxylic acid can be prepared from alcohols, nitriles, and esters. Which statement are correct? Both primary and secondary alcohol can be oxidized to carboxylic acid. This is absolutely incorrect. Absolutely incorrect. And therefore, the right answer is going to be C. Why it's incorrect? Because primary alcohol gives carboxylic acid on oxidation, but secondary alcohol gives ketone. Okay. That's not possible. Carboxylic acid can be made from nitriles by hydrolysis. That's correct. तो अगर मेरे पास nitriles हैं, that is CN, और मैं उसको acid hydrolysis कर दूं, that's what we have done in the class, so it will turn to carboxylic acid. तो ये तो बिल्कुल ठीक है. और आप जानते हैं कि ये अल्कोहल का पार्ट है, और आप जानते हैं कि ये एसिड का पार्ट है. So जब हाइड्रोलिसिस होगी तो obviously you will get प्रोपेनिक एसिड. और यहां से आपको 2 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल. तो वो ये सही तो कह रहे हैं कि गिव्स प्रोपेनिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद एसिड हाइड्रोलिसिस. तो ये बिल्कुल सही बात है, which is why second and third option is correct, and therefore C is going to be the right answer. Thank you very much, guys.